الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ امیدواروں کے ناموں کی فہرست 27 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 20 تا 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی۔ ریٹنگ افسران 19 دسمبر کو پبلک نوٹس جاری کریں گے، جبکہ امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ 1 سے 6 جنوری 2024 تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ عوام کو بڑا ریلیف مل گیا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ہے۔ پیٹرول 14 روپے فی لیٹر سستا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 267 روپے 34 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 50 پیسے کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 21 پیسے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 11 روپے 29 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ مٹی کا تیل 10 روپے 14 پیسے سستا کر دیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 191 روپے 2 پیسے مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا۔ لاہور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ موٹر وے کو پھر سے دھند کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے مکمل طور پر بند ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہ زیب شہزاد سے۔ جی شاہ زیب۔ بالکل لاہور شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں دھند اپنا زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے، اسی لیے موٹر وے پولیس کی جانب سے عوام کی حفاظت کے لیے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ M2 کو کوٹ مومن سے دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتا چلوں کہ M4 عبدالحکیم سے پنڈی پٹیاں تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاؤں کہ M3 فیض پور سے رجحانہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ دھند کی شدت زیادہ ہے، حد نگاہ صرف 100 فٹ تک محدود ہے، اسی لیے موٹر وے کو بند کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ شہریوں کے لیے ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کریں اور فوگ لائٹس کے استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ افسوسناک واقعات سے بچ سکیں۔ شہریوں کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ وہ دوسری گاڑیوں سے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھیں تاکہ کوئی افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو، جبکہ شہری اپنی مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ موٹر وے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ہی دھند میں کمی واقعہ ہوگی، موٹر ویز کو عوام کی سہولت کے لیے پھر سے کھول دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شاہ زیب، بہت لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ عدالت کا پرائیویٹ دفاتر میں ہفتے میں 2 روزہ ورک فرام ہوم کا حکم۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایات کر دی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت مختلف محکموں نے عمل درآمد رپورٹس پیش کی۔ عدالت میں ڈپٹی کمشنر کے وکیل نے بتایا کہ 10 بجے کاروبار بند نہ کرنے والے 36 کیفے اور ریسٹورنٹ سر بمہر کیے گئے اور جرمانہ بھی کیا گیا۔ کیفے اور ریسٹورنٹ کے مالکان نے ڈی سیل کر دیے ہیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ بیان حلفی جمع نہ کرانے والے کیفے اور ریسٹورنٹ ڈی سیل کرنے والے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ عدالت نے اظہار ناراضی کرتے ہوئے سرکاری وکیل کو باور کروایا کہ عدالتی حکم تھا کہ ہفتے کے روز سکول بند رکھے جائیں، ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کریں، لیکن حکومت نے عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا۔ عدالت کا پرائیویٹ دفاتر میں ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کا حکم، پنجاب حکومت کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ سرکاری وکیل نے کینال روڈ پر خشک درختوں کو کاٹ کر نئے سرسبز درخت لگانے کی اجازت مانگی، جس پر عدالت نے اجازت دے دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ بانی پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس میں نااہلی اور الیکشن کمیشن کا دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جواب طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی اور دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس شاہد کریم، جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس جواد حسن شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروانے کے خلاف
खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हैं। सरबराह लार्जर बेंच जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। अदालती समाअत के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच ने दोनों दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। आज की समाअत हुई, उसके ऊपर जो 2 नए केसेस थे नाअहली के खिलाफ और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो करवाने का कलअदम करार दिए थे उसके खिलाफ, उनमें नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो पहला केस है तोशा खाना वाला, उसमें चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब नहीं आए थे तो अदालत ने सोचा और समझा कि उनको सुने बगैर आगे मजीद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बेंच के रुकन जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा, आपके क्लाइंट मियांवाली से रुकन मुंतखब हुए थे। मियांवाली पंजाब का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कैसे सुन सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद इंतहाई महदूद है, ये भी आप अदालत को बताएंगे। लार्जर बेंच ने पीटीआई की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को करप्शन केस से डिस्चार्ज करने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस वसूल न होने की बिना पर समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने मोहम्मद खान भट्टी को मुकदमा से डिस्चार्ज करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस मौसूल नहीं हुए। अदालत ने समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। हुकूमती अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एंटी करप्शन गुजरावाला ने तरक्याती मंसूबों में करप्शन पर मुकदमा दर्ज किया। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तहकीकात में जुर्म साबित हुआ। मजिस्ट्रेट ने हक़ाइक़ के बरक्स डिस्चार्ज किया। अदालत ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी मंजूर करने का हुक्म कलअदम करार दे। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने खालिद लतीफ़ की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने 14 दिसंबर को शेर अफजल मरवत को कानून के मुनाफी गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट बार से वापसी पर पुलिस ने हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि शेर अफजल मरवत की नजरबंदी कानून और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इजलास में कोई गैर कानूनी बात भी नहीं की, लिहाजा अदालत शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का कलअदम करार देकर रिहा करने का हुक्म दे। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर से 18 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का रीडिंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रीडिंग अफसरान से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तिल कर दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी को तौहीन अदालत कानून के तहत शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाईकोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के इंतखाबात रोक दें? कल को वो ये भी कह देंगे कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतमाद नहीं, तो फिर क्या होगा? तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके आइंदा आरओज और DRO से मुतालिक दरख्वास्तों पर कार्रवाई न करने की हिदायत भी की, जबकि बैरिस्टर उमैर नियाजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला किया। अदालत ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई शेड्यूल जारी करेंगे। पीर को DROs और ROs तरबियत का दोबारा आगाज करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि इंतखाबात का इनकाद आइन का तकाजा है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 13 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 50 और 51 को गैर कानूनी करार दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन एक्ट की ये दोनों शिकें गुज़िश्ता इंतखाबात में भी थी, लेकिन कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। अदालती हुक्म में लिखा गया कि आम इंतखाबात के इनकाद के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में केस के जरिए इंतखाबात 8 फरवरी को तय हुए। तमाम
तमाम सूबाई हुकूमतों की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी थी। हमने अपने फैसले में लिखा कि कोई भी जमहूरियत को डीरेल ना करे। हुक्मनामे में लिखा गया कि वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अभी इंतखाबात के इनेकाद बारे इक़दाम ले रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आज इंतखाबी शेड्यूल जारी होना था। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बरकरार रहा तो इलेक्शन प्रोग्राम जारी नहीं हो सकेगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्मनामे में तजाद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में लिखा गया कि उमर नियाज़ी को तौहीन अदालत कानून के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया जाएगा। उमर नियाज़ी बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 5 रोज़ा इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी का सर्जिकल टावर डॉक्टर फैसल मसूद के नाम से मंसूब करने का ऐलान कहते हैं बड़े हस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर को बीमारी लगने का इल्म होने के बावजूद मरीज का इलाज करता है। जो सर्जिकल टावर है उसका नाम फैसल मसूद टावर रख दिया जाए तो बहुत है। हमारी तो ख्वाहिश है कि सारे के सारे बड़े हॉस्पिटल जो 8-10 हॉस्पिटल सारे के सारे ऐसे हो जाएं और हम उसके लिए छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं। ये 8-10 हॉस्पिटल जो हैं ये सारे के सारे उसी ये म्यो की तर्ज पे ही एक ही डिज़ाइन है जो सारों में जा रहे हैं, चाहे वो जनरल हॉस्पिटल है, चाहे वो सर्विसेज हॉस्पिटल है, चाहे वो भावलपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो होली फैमिली हॉस्पिटल है। ये डॉक्टर्स वो हैं जो उसको पता है कि इसको ऐसी बीमारी है, सख्त बीमारी है, मैं भी सफ़र कर सकता हूँ और वो उसके साथ इलाज कर रहा होता है खड़े होकर। एलडी और वासा के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स की तरक्कियां। डायरेक्टर डीजी हेडक्वार्टर्स एलडीए आसिफ हुसैन को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई है। आपको बताएं कि डायरेक्टर एलडीए कलीम यूसुफ को भी ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई है। महकमाना प्रमोशन कमेटी की सिफारिश पर डायरेक्टर मेंटेनेंस वासा शेख अकरम और डायरेक्टर O&M निश्तर टाउन सोहेल सिंधु को तरक्की दी गई है। शेख अकरम और सोहेल सिंधु को रेगुलर ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर मोइन शाह और आतिफ गफूर को ग्रेड 18 में रेगुलर तरक्की दे दी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 फायजा अहमद को ग्रेड 18 में चार्ज पर तरक्की दी गई है, जबकि एमडी वासा के अहकामात पर तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कलमा चौक ता वॉल्टन रोड पर बेशतर तामीरात मुकम्मल हो चुकी हैं। फ्लाई ओवर पर काम शुरू है। वॉल्टन रोड पर नया पुल बनाने जा रहे हैं जो लाहौर ब्रिज के साथ मुंसलिक होगा। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब प्रोजेक्ट साइट के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है कि 31 जनवरी तक नई बुलेवार्ड मुकम्मल हो जाएगी। वॉल्टन रोड पर नया पुल बनाने जा रहे हैं जो लाहौर ब्रिज के साथ मुंसलिक होगा। फिरोजपुर रोड से एक नया रास्ता निकलेगा। अगले चंद दिनों में काम शुरू कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया कि गार्डन टाउन के चौक पर T जंक्शन पर 8 से 10 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव तकमील के आखिरी मराहल में है। CBD एक ही वक्त पर 8 से 10 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। वॉल्टन रोड है उसको मेन बुलेवार्ड के साथ कनेक्ट करना है, उसका काम तेज़ी से जारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह 31 जनवरी तक हम ये एक नई बुलेवार्ड है जो शुरू कर देंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है वो इसी रोड पे आगे जाके हम नया ब्रिज बना रहे हैं जो लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा। लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा तो आप फिरोजपुर रोड से एक नया रास्ता निकल आएगा इस पूरे इलाके के लिए। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। और गार्डन टाउन का जो चौक है उसका भी काम हम तकरीबन 8-10 दिन में शुरू कर देंगे। निगरान वज़ीर आला का मज़ीद कहना था कि फसलों की बाकियात का जलाव 5% भी नहीं, फिर भी स्मोक है क्योंकि स्मोक पर हमारी रिसर्च अच्छी नहीं है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर की 8 बड़ी शाहराहों की तामीर बहाली के लिए 1 अरब 4 करोड़ 90 लाख रुपए की समरी मंजूर। DC लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर आफे हैदर ने 1 माह में काम मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। लाहौर की 8 बड़ी शाहराहों की तामीर व बहाली का प्लान 1 अरब 4 करोड़ 90 लाख रुपए की समरी मंजूर। सड़कों की तामीर व बहाली के साथ रंगो रोगन की भी मंजूरी दे दी गई। आशियाना रोड चुंगी अमर सिद्धू की तामीर व बहाली के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर। न्याजी चौक से आज़ादी चौक फेज 1 के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी। रावी रोड फेज 2 मीनार पाकिस्तान से भाटी चौक तक सड़क की तामीर व बहाली के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर। अलामा इकबाल रोड धर्मपुरा पुल से पुराना रेलवे फाटक की तामीर व बहाली के लिए 19 करोड़ रुपए की मंजूरी। एबर्ट रोड से लक्ष्मी चौक तक सड़क की तामीर व बहाली
बहाली के लिए 14 करोड़ मंजूर किए गए हैं। नोनारिया रोड बाबू साबू की तामीर व बहाली के लिए 19 करोड़ 50 लाख की मंजूरी। अनारकली लेक रोड कपूरथला हाउस की तामीर व बहाली के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर का कहना है कि शहर में तमाम तरक्याती कामों को 30 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्लोबल विलेज अरीना सेंटर को लीज पर देने के लिए एलडीए और सीबीडी पंजाब में मामूलात तय पा गए हैं। आपको बताएं कि एलडीए को मुनाफा का 72% जबकि सीबीडी को 28% शेयर मिलेगा। ख़त्मी मंजूरी पंजाब काबीना से ली जाएगी। एलडीए ने समरी मंजूर के लिए पंजाब काबीना को अरसाल कर दी, जबकि काबीना ने मुआहदे पर राय लेने के लिए समरी महकमा कानून और खजाना को अरसाल कर दी। मुआहदे के मुताबिक सीबीडी पंजाब को अरीना सेंटर ग्लोबल विलेज लीज पर दिया जाएगा। सीबीडी पंजाब ने अरीना सेंटर का नाम तब्दील कर दिया। लीज पर देने के लिए नाम ग्लोबल विलेज रख दिया। लीज पर देने के लिए मुआहदे में तब्दीलियां भी की गई हैं। ग्लोबल विलेज जौहर टाउन को 33 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस की सहूलत के बाद लाहौर के पुलिस खिदमत मराकज़ में रश कम हो गया। लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों का 80% रश कम हो गया और सिर्फ रेगुलर लाइसेंस के हसूल वाले अफराद का रश बरकरार है। तफसीलात ज़ैन अली की रिपोर्ट में देखिए। ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस की सहूलत ने पुलिस खिदमत मराकज़ में रश कम कर दिया। लाहौर के दीगर पुलिस खिदमत मराकज़ की तरह लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर में भी शहरियों का 80% रश कम हो गया। शहरी ऑनलाइन की सहूलत से मुस्तफ़ीद होने लगे। सिर्फ रेगुलर लाइसेंस बनवाने वालों का रश बरकरार है। इंचार्ज लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ राना इमरान का कहना है कि क्रैकडाउन के बाद रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से 6 से 7 हज़ार लर्निंग लाइसेंस बनते थे। ऑनलाइन सहूलत के बाद 75 से 80% रश कम हो गया है। तकरीबन को 75-80% जो है ना वो रश कम हो गया ऑनलाइन लाइसेंस लर्नर लाइसेंस बनने की वजह से। अभी ज़्यादातर हमारे पास जो रश है वो जो लोग रेगुलर लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं उनका, या जो अपना लर्नर लाइसेंस जो है ना रिन्यूअल करवाने के लिए आ रहे हैं उनका रश है हमारे पास। रश कम होने के बाद शहरी भी सहूलियात बारे मुतमईन है। कहते हैं रश कम होने से सहूलियात में बेहतरी आई है। यहाँ पे फैसिलिटी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम टाइम पे आए हैं, टाइम पे हमें मिल रहा है, टोकन भी मिल रहा है। सहूलियात ठीक है, काफ़ी उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, सारे मिलके मैनेज कर रहे हैं। जैसे टोकन वाइज उन्होंने काफ़ी आवाम के लिए जो सहूलत की हुई है तो काफ़ी खुशाइन बात है ये तो हमारे लिए। सिस्टम ठीक है, देखने में बहुत तरतीब से हर जो है काम तरतीब से हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक माह के दौरान कम उम्र और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले 17,180 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर पर रेलवे प्रेम यूनियन ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। 21 दिसंबर को लाहौर भर में मुजाहिरा किया जाएगा। रेलवे हेडक्वार्टर प्रेम यूनियन के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन प्रेम यूनियन ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि रेलवे का माली बहरान बढ़ गया, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। पीडीएम के दौर में सूरत हाल मजीद खराब हुई। 21 दिसंबर को भरपूर एहतजाज की कॉल दे दी है। मुल्क भर से रेलवे मुलाजमीन रेलवे हेडक्वार्टर्स का घेराव करेंगे। रेलवे प्रेम यूनियन ने फैसला किया है कि मुल्क भर से मजदूरों को लाहौर में रेलवे हेडक्वार्टर में पर 21 दिसंबर को इकट्ठा किया जाए और एक भरपूर मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें हम ये मुतालबा करेंगे कि रेल की नजकारी हम नहीं होने देंगे। रेलवे के जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए और रेल के मजदूर की तनख्वाहें बर वक्त अदा की जाएँ। प्रेम यूनियन के सदस्य शेख मोहम्मद अनवर का कहना था कि रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें AGPR के तहत दी जाएं, तमाम सेक्शंस पर ट्रेनों को बहाल किया जाए। आज मजदूर परेशान है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम अदारों को हुकूमत पाकिस्तान खुद तनख्वाह देती है, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती तो रेलवे को उस AGPR के जरिए तनख्वाह नहीं दी जाती। हमारा ये मुतालबा है कि रेलवे के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी AGPR के जरिए अदा की जाएं। रेलवे प्रेम यूनियन के ओहदेदारों का मजीद कहना था कि रेलवे के तमाम डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। रेलवे को प्राइवेट करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों और वापटा की इंजीनियर्स एसोसिएशन के एहतजाज भी काम न आए। विफाकी हुकूमत के हिदायत पर महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई ख़त्म कर दी गई। तफसीलात फाहद अमीन की रिपोर्ट में देखिए। महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस अफसरान की तनख्वाहों में शामिल कर दिया गया। इंजीनियर्स एसोसिएशन विफाकी हुकूमत को कायल न कर सकी। रवा माह से ग्रेड 17 से 21 तक किसी भी अफसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे। मोनेटाइजेशन के तहत ग्रेड 17 के अफसरान की तनख्वाहों में 15,858 रुपए बिजली अलाउंस शामिल कर दिया गया। ग्रेड 18 के अफसरान 21,996 रुपए, ग्रेड 19 में 37,594
में शामिल, जबकि ग्रेड 20 के अफसरान की तनख्वाहों में 46,992 रुपए अलाउंस शामिल किया गया। रवा माह से तमाम अफसरान अपना बिजली का बिल खुद अदा करेंगे। विफाकी हुकूमत के फैसले पर अफसरान में मायूसी फैल गई। ज़राए के मुताबिक फ्री यूनिट्स के मामले पर लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों की एसोसिएशन ने अदालतों से रुजू करने का फैसला कर लिया। लेस्को अफसरान का कहना है कि फ्री यूनिट्स मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, हमें फ्री यूनिट्स नहीं मिलते, उसके वाजिबात तनख्वाहों का हिस्सा हैं। महंगाई की वजह से तालीम हासिल करना भी मुश्किल होने लगा। एक बरस के दौरान निसाबी कुतुब और नोटबुक्स की कीमतों में 100% तक इजाफा हो गया। तफसीलात आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में तालीम हासिल करना भी मुश्किल हो गया। साल 2023 तालीम के हवाले से भी मुश्किल रहा। एक बरस के दौरान कागज की कीमत में 100% तक इजाफे ने किताबें और नोटबुक्स भी महंगी कर दी। किताबों और कापियों की कीमत में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 600 रुपए वाली हेल्पिंग बुक अब 800 की हो गई। निसाबी कुतब में भी फी कोर्स 1 से 2000 रुपए का इजाफा हुआ। तलबा का कहना है कि अपना जेब खर्च अब किताबें और नोटबुक्स खरीदने पर लगा रहे हैं। पिछले साल मैंने जो 9th-10th में अपनी किप्स की ली थी गाइड्स, वो ली थी तकरीबन 2200 रुपये की। अब मैंने पता किया है इंटरमीडिएट के लिए, लेकिन वही किताबें अब वो कह रहे हैं 5000 रुपये की। पिछले साल बुक थी 600 रुपये की, अब वो बिक रही है 850 रुपये की। एक आईना है उर्दू का, तो इसमें देख लें फ़र्क पड़ रहा है। जो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो कैसे ये परचेज़ करेगा, उसके तो नहीं है। अब इससे बहुत हद तक तालीम मुतासर होती है। शहरियों का कहना है कि अपनी मर्जी से कभी भी निर्खों में इजाफा कर लिया जाता है और कोई चेक करने वाला ही नहीं। हुकूमत इस शोबा को भी लगाम डाले। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के स्टोर्स ना रहे, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफीन ही मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आम सारिफ के लिए अशिया मार्केट रेट से महंगे दामों दस्तयाब है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर फायदा मंद न रहा। अशिया आम मार्केट से भी महंगे दामों मिलने लगी। रियायती निर्ख पर सिर्फ बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्टर्ड सारिफी मुस्तफीद हो रहे हैं। आम सारिफ को चीनी 155 रुपए किलो दी जा रही है, जबकि मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो में मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर से आम सारिफ के लिए घी 420 रुपए, जबकि मार्केट में इसी मायार के घी की कीमत 400 रुपए फी किलो तक है। इसी तरह दीगर अशिया ज़रूरिया भी आवाम को सस्ते दामों दस्तयाब नहीं। शहरियों की जुबान पर यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई और अशिया की अदम दस्तयाबी के शिकवे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं किसी किस्म का। उसी को सहूलत है जिसको इधर पैसे मिलते हैं बेनज़ीर के। इसके अलावा दूसरे को बेनिफिट मिलना चाहिए भी, जिसको नहीं पैसे मिलते उसको राशन देना चाहिए। ये उल्टा निज़ाम है, उनको भी पैसे भी मिलते हैं, उल्टा राशन भी मिलता है। मार्केट के अंदर चीज़ों के रेट कम है, यूटिलिटी स्टोर पर ज़्यादा है, तो ये बेनज़ीर स्पोर्ट की वजह से तो ये 10 के अंदर से मेरे को 2 को मिलती है चीज़, बाकी अदरवाइज 8 को तो मिलती नहीं रही है। बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम में शामिल आवाम को घी, चीनी और आटे की खरीदारी के लिए दीगर अशिया की खरीदारी की भी शर्त है। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। कुदरती गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत के बायस LPG की तलब बढ़ गई। LPG माफिया भी सरगर्म। शहर में ओगरा रेट पर कहीं LPG दस्तयाब नहीं। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने आ लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत आम होने लगी। शहरी मुतबादिल ईंधन LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। LPG की ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर में ओगरा रेट पर कहीं भी LPG दस्तयाब नहीं। ओगरा ने रवा माह LPG की कीमत 255 रुपए फी किलो मुकर्रर की। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। हुकूमत LPG की ब्लैक मार्केटिंग का नोटिस ले। मजबूरी है की करिए, इतों आग भरा के जाईदी है ते महंगी इन्नी गैस हैगी है। माड़े बंदे वास्ते बहुत परेशानी दा हाल होया और बंदा गुजारा की या बंदा गैस ही पवावे या फिर बच्चों ही पाले। सारा दिन मेहनत मुशक्कत करने के बाद 400-500 रुपए अपने घर लेकर जाते हैं बड़ी मुश्किल से। उसमें हम क्या करें, क्या खाएं और क्या कमाएं। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर ने गैस की किल्लत के खदशे का भी इजहार कर दिया। उनका कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे से रवा माह LPG लाने वाले 2 बहरी जहाजों की पाकिस्तान आमद मनसूख कर दी गई। दोनों जहाज श्रीलंका भेज दिए गए हैं।